सवाल यही पूछा जाऊगा, ਤੁਹਾਡਾ कोई पोलिटिकल मोटिव है इस मुहिम ਨੂੰ शुरू करने पीछे? बिल्कुल है। हम जो भी करते हैं उसकी एक राजनीति होती है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की। कोई अजनबी आपके लिए द्वार क्यों खोलेगा? पहला नॉक करना ये शायद आवश्यक है। आपकी कैंपेन हाथ मिलाने वाली है, दिल मिलाने वाली है? दिल मिलाने वाली है। जिस तरीके से आप कैंपेन आगे बढ़ाएंगे, आपको लगता है कि उस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे? ये एक बहुत ही अदृश्य कैंपेन की तरह होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वाह वाह वाह। कोशिश है हर साज पे गाया जाए। अब ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੋ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਜਨਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਰ ਪੀਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਰ ਪੀਟਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੀਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲੀਨਾ ਡੇਬੇਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੇਸਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਦੇਸਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਕੋੜਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ? बिल्कुल है। हम जो भी करते हैं उसकी एक राजनीति होती है। इस देश में लोकतंत्र को बचाने की और लोगों के बीच में प्यार और मोहब्बत को दोबारा से कायम करने की राजनीति है। क्योंकि एक राजनीति वो है जो नफरत फैलाती है और एक राजनीति ये वो है जो प्यार, मोहब्बत और लोगों को आपस में मिलवाती है। तो ये तो राजनीतिक मकसद है ही प्यार मोहब्बत का। बाकी जो पार्टी वाली पॉलिटिक्स होती है उसमें जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हम में से किसी का कोई लेना देना नहीं है उससे। चलो, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे लगता है शबनम जी। पर सवाल एक होर है शबनम जी, सवाल यह है कि जो नफरत मुहब्बत की गल होंदी है, कहते राहुल गांधी की गल हो रही है। शबनम जी ऐसा है कि मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद वीडियो भेजूंगी। हमने 10 साल पहले रिलीज किया था और उस वीडियो का नाम जो था वो मोहब्बत की दुकान था। और वो तो हम राहुल गांधी के पीछे हैं या ये कि हम उनसे शायद आगे चल रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी मोहब्बत की बात कर रहा है हम उसको एक अच्छा इंसान मानते हैं, क्योंकि ये देश जो है वो बहुत सारी कुर्बानियों से बना है और लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। हर धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ
जंग लड़ी है, आप तो भगत सिंह की भूमि पे बैठे हैं जी। और हम अपनी विरासत भगत सिंह की विरासत समझते हैं। तो हम इसलिए प्यार मोहब्बत और इंसानियत का जो पैगाम है वो लेके हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोगों के बीच जाए। इस बार जो हम कर रहे हैं वो एक नया तरीका है और उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। और जैसे मैं अपने बचपन की बात सोचती हूँ कि हम ईद पे हमारे घर लोग आते थे, दिवाली होली पे हम दूसरों के घर होते थे, तो वो आना जाना दोबारा से शुरू हो, मेल मिलाप हो। और जिस तरह की नफरतें फैलाई जा रही हैं चारों तरफ, खासतौर से धर्म के नाम पे, तो वो रुके। हमारा मकसद ये है कि वो रुके और लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ दोबारा रहें। चलो शबनम जी, एक सवाल होर करूँगा, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट को जाऊँगा। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ? ਇਹ अब चोरी करी या नहीं तो पता नहीं, लेकिन शायद उससे इंस्पायर हुआ हो कोई। लेकिन जहां तक चोरी की बात है तो यहाँ बैठे हैं देव और इन्हें बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने तुषार गांधी को अहमदाबाद में बुलाया था। और अहमदाबाद में, गुजरात में ट्रेडिशन है सड़क पे चाय पीने का, चाय की केटली कहलाती है, और चाय पे चर्चा हमने शुरू की थी पहले और मोदी ने बाद में शुरू की। तो मुझे लगता है कि आइडियाज के लेवल पे तो हम काफी आगे हैं, बाकी लोग उससे इंस्पायर हो, चोरी करें, वो उनके ऊपर है। चलो मैं वापस आऊँगा। देवसाई जी, अब सवाल आपके लिए है। चाय पे चर्चा, चाय मोदी साहब ने चोरी कर ली और मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने चोरी कर ली, लेकिन जो देश में इस चोरी का अंजाम होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। देव जी, वजह क्या है? देखिए, मैं गुजरात से आता हूँ, अभी गुजरात में रहता हूँ, और जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं वो गुजरात मॉडल ये मेरे घर आके तो देखो कैंपेन उसको ध्वस्त करता है। क्योंकि मैं अहमदाबाद शहर की अगर बात करूँ, आज अहमदाबाद शहर अगर जियोग्राफी आप देखेंगे तो अहमदाबाद शहर ऐसे डेवलप हुआ है कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल एक तरफ यहाँ उस एक्ट की वजह से आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू है तो मुसलमान है। और जितने रायट हुए 2002 और उससे पहले, तो उसकी वजह से मुसलमान गेटवाइज हो। अब मेरी जनरेशन के जो लोग हैं वो मुसलमान ना कभी हिंदू से मिला है, ना वो हिंदू कभी मुसलमान से मिला है, ना साथ में पढ़े है, ना साथ में कॉलेज किए। बहुत कम लोग जो है जिनको साथ में आने का मौका मिलता है। और आफ्टर 2002 जो मेरा अनुभव है कि ये सिर्फ रिलीजियस के साथ नहीं रहा, ये अब कास्टिज्म पे भी हो। तो अहमदाबाद की जियोग्राफी आप देखेंगे तो कुछ एरिया है जहाँ पे बिल्कुल अपर कास्ट को घर मिलेंगे। आज आप अहमदाबाद की किसी भी स्कीम में जहाँ पे जो हिंदू है, जहाँ पे नए स्कीम बन रही है, वहां चलिए और आप ये कहेंगे मैं रबारी कम्युनिटी से हूँ, मैं राजपूत कम्युनिटी से हूँ, मैं दलित कम्युनिटी से, तो आपको वो बिल्डर ही मना करेगा कि आपको घर नहीं रहने के लिए, आपके पास चाहे जितना पैसा। तो ये पूरा जो लोगों को जाति और धर्म में जो बांटने की राजनीति है उसको तोड़ता है ये कैंपेन मेरे घर। नहीं, मुझे देव जी एक चीज बताइए, बहुत सीधे शब्दों में सुनना चाहता हूं, ये कौन तोड़ रहा है देश को? उसका नाम तो लीजिए ना। देखिए, एक सोच है इस देश में, एक सोच है जो इस देश को तोड़ रही है। उनको फायदा मिलता है पॉलिटिकल वोट बटोरने के लिए, उनको वोट बटोरने के लिए मिलता है। और मैं साफ साफ, मुझे कहने में कोई अर्थ नहीं है, आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश को तोड़ रही है। ये लोगों को अलग करके अपनी राजनीति करती है, और जितनी भी कट्टरवादी विचारधारा है वो सारी। जी चलो, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ देव जी, वापस आऊँगा। बहुत सारे सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ मेरे घर आके तो देखो मुहिम का असल मकसद किया है। पीटर जी, आपने तो बहुत काम किया आदिवासियों के बीच, मिनोरिटी के लिए, वो तो उनके सबसे ज़्यादा सवाल हैं मुझे लगता देश के आगे। तो आपकी मुहिम के ज़रिए क्या वो सवाल एड्रेस हो पाएंगे पीटर जी? देखिए, यहाँ पे झारखंड में हम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ तो काम कर ही रहे हैं, और यहाँ पे झारखंड में पिछले कई 6-7 सालों में 40 से भी अधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं। तो मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो एक एक्सट्रीम था
लेकिन इसके अलावा जो है जो मेल जोल है वो तो बढ़ाने की जरूरत है ही। एक मुद्दा जो है वो यहाँ पे कई लोगों को बोला जाता है कि इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं, बांग्लादेशी है, तो इस प्रकार की जो धारणाएं फैलाई जा रही है, इसको इस मुहिम को के थ्रू हम उसको पार करना चाहेंगे। एक और जो डिवाइड यहाँ पे उभरता है वो ये है कि आदिवासियों में भी क्रिश्चियन और जो नॉन क्रिश्चियन आदिवासी है, जो सरना रिलीजन के आदिवासी हैं, मतलब आदिवासी जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, उसमें भी एक डिवाइड बनाया जा रहा है पॉलिटिकली पिछले करीब 8-10 सालों से। तो उसको पार करने की जरूरत है ही, और ये मुहिम जो है इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो जिनको हम नहीं जानते हैं उनके घर हम अधिक से अधिक जाएं और मिले, और सोशल मीडिया में जो रायता फैला हुआ है उस रायते की जगह पे हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज दें। पीटर जी, सवाल ये है कि कोई अजनबी आपके लिए द्वार क्यों खोलेगा? ये सही बात है, लेकिन देखिए अभी हम लोग जब कम्युनिटीज में जा रहे हैं तो कम्युनिटीज में हम यही कह रहे हैं कि कई अपने गांव के, अपने शहर के लोग हैं जिनसे आप रोड पे मिलते तो हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन दूर से ही हाय हेलो करके चले जाते। तो ये मौका है कि हम उनके घर जाएं और सिर्फ 15 अगस्त को झंडा ही ना फहराएं, लेकिन उनके साथ में कुछ समय बिताएं और तब उसको मतलब प्रमोट करें। एक और मैं बस एक एफर्ट मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आदिवासी समाज में जो ट्रांसजेंडर हैं, वो ट्रांसजेंडर्स जो है रूरल कम्युनिटीज में लाइवलीहुड कर रहे हैं। तो एक हम लोग का एफर्ट ये भी हो रहा है कि ट्रांसजेंडर लोगों के घर जाएं और उनके कहानियों को सामने लाएं। तो क्यों खोलेगा दरवाजा? जब हम लोग जाएंगे, मिलेंगे, पहला नॉक करना ये शायद आवश्यक है। चलो, मैं इंतजार करूंगा जब आप नॉक करोगे। तो अलीना जी, एक शायर ने कहा था, सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। आपकी कैंपेन हाथ मिलाने वाली है, दिल मिलाने वाली है? दिल मिलाने वाली है। कैसे मिलेंगे दिल? दिल तो तभी मिलेंगे जब तक एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पियेंगे, खाना खाएंगे और एक दूसरे की परेशानियां और प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। कि ये तक ये उनकी कोई परेशानी अगर है तो वो अगले के साथ शेयर करना चाहे। जब शेयर करता है कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अपनी खुशी और अपना गम, तो वो दिल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं, बड़ा वैसे मैं पंजाबी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਗੰਢੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਖਵਾਉਂਗਾ मैं? कोई गल नहीं, महंगा हो तो क्या हुआ, जब आपने एक बार इरादा कर लिया है कि आपने मिलके रहना है, इस देश में शांति को अमल करना है, तो महंगाई को थोड़ा सा साइड पे करके, ना ही महंगाई को 5 रुपए के 50-50 वाली बिस्किट ही खिला देंगे। आप फिक्र ना करें, ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जो एक दूसरे को जब कोई इजहार करता है कि मैं आपके घर आऊंगा, तो वो खुले खुली बाहें करके उसको इनवाइट करते हैं। तो हमारे देश में अभी भी वो परंपरा जारी है। वो हम लोग भूल रहे हैं, वो अलग बात है, बट परंपरा हमारी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਤਾ। भाई बड़ी अजीब सी बात है कि आपको ही नहीं समझ आ रही कि कौन नहीं रहने दे रहा। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ में 24 घंटे बहते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता होना चाहिए। तो प्यार मोहब्बत जो रहने नहीं दे रहा वो हैं जो कि बच्चों के बीच में लठ दे रहे हैं, जो बंदूकें बढ़ा रहे हैं, जिनको गाली गलौज सुना रहे हैं, ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ को आतंकवादी कहे, खालिस्तानी कहे, उनके ऊपर आरोप लगाए कि ये देशद्रोही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है,
ये खान मार्केट गैंग है, इनके कपड़े देखो, इनका झोला देखो, इनके चप्पल देखो। ये जो पूरी संस्कृति हमारे देश में तैयार की जा रही है पिछले 9 सालों में, हमारा कैंपेन उस संस्कृति को खत्म करना चाहता है। और हमें ये कहना चाहता है, और आप न्यूज रूम वालों को भी ये कहना चाहता है कि हमारे देश की जो मूलभूत परंपरा है वो है मोहब्बत की। और हमारा संविधान भी यही बोलता है कि आप प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ भाईचारा, फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ रहे। तो हम जब पूरे बने उसी के लिए, हम पैदा ही उस जगह में हुए हैं, तो हमें हमारे बच्चों को भाला देने वाला क्यों आज ऊपर चढ़ गया है? हमारे देश में आज औरतों ने और आदमियों ने ये फैसला किया है कि हम अपने बच्चों को भाला बंदूक नहीं देंगे, सबको प्यार, मोहब्बत और तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। तो लीना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? देखिए, हैरानी की बात यह है कि अभी तक रोड़े कोई नहीं आए हैं। हाँ। और ये हमने अनहद में लीना है, मैं हूँ और हमारे कुछ साथी हैं, भावना, संदल, आयशा, 5 महिलाएं बैठी हैं एक छोटे से कमरे में। और हमने ये 1.5 महीना पहले इस पे काम करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने पूरे देश में अपने जो साथी हैं उनसे बातचीत शुरू की। आज 26 राज्यों में कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, तैयारी हो रही है, लोग बस्तियों में जाके बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास में बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो 1 लाख फैमिलीज का है। तो कल हम इसे लॉन्च कर रहे हैं और ये 30 जनवरी तक चलेगा। और हमारी जो उम्मीद है वो ये कि 30 जनवरी तक आते आते तो हम 1 लाख क्या, हम तो लाखों परिवारों तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। शबनम जी 30 जनवरी ही क्यों चुनी तुसी? 30 जनवरी हमारे लिए बहुत अहम डेट है, क्योंकि गांधी जिन्होंने इस देश को अहिंसा सिखाई, जिन्होंने एक ऐसा रास्ते से हमको आजादी दिलाई, उनको उस दिन मारा गया था। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो नफरत की ताकतें हैं जो अहिंसा के ऊपर वार करती हैं, उस दिन तक तो हम इस प्यार की मुहिम को जिंदा रखें। चलेगी तो उसके आगे भी, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो ये काफी आगे तक जाएगी और ऑर्गेनिकली चलेगी, फिर हमें कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, वो हिंसा और इस तरह की नफरत से अब तंग आ चुके हैं। चलो मैं खोर छोटा ब्रेक ला के वापस आ रहा। देव जी को जावांगे उस तो बाद आज़ादी के 76 साल सवाल किहड़े ने वो सारे सवालों की कोशिश करूँगा तुहाडे जहन दे विच। वापस आ रहे और फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे देश के नामी समाजिक कारकुनां वालों शुरू की मेरे घर आके तो देखो मुहिम का असल मकसद की है। देव जी ये जो आपकी कंपेन है, मैं आपकी वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे देखा मैंने बड़े बड़े चेहरे थे आपके साथ। देव जी उन चेहरों को डर नहीं लगता? जिस तरह से आप कह रहे हो नफ़रत का दौर है, मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, उस दौर में उन चेहरों को डर नहीं लग रहा आपके साथ जुड़ने में? देखिए, मुझे ये लगता है, और मैं गांधी के राज्य से हूँ जहाँ गांधी पैदा हुए, गांधी अगर अंग्रेजों से नहीं डरे और उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, तो आज भी जो प्यार, मोहब्बत की और अहिंसा की बात करता है वो नहीं डरता है। डरपोक वो लोग हैं जो हिंसा की राजनीति करके लोगों को डरा के लोगों में खौफ पैदा करके अपनी राजनीति करते, वो डरपोक है। जो प्यार मोहब्बत की बात करता है वो कभी नहीं डरता है। नहीं, आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो कि गांधी की जो विचारधारा है उसके हिसाब से देश चले और गोडसे की विचारधारा उसके विरुद्ध खड़े हैं? आप कहना क्या चाह रहे हो आप? जी मैं नहीं, इस देश की 90% 99% जनता जो है आज गांधी की विचारधारा के साथ खड़ी है और गॉडसे के खिलाफ खड़ी है। गांधी का चोला, मतलब स्वच्छ भारत अभियान चोला गांधी का पहन के सरकारें किया करती है, पर उनके पीछे जितने गांधीयन संस्था खत्म की। पर बात यह है कि जो गांधी विचारधारा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में स्वीकार्य है, क्योंकि वो अहिंसा की बात करती है, वो नॉन वायलेंस की बात करती है, बिना हथियार उठाए अपने दुश्मन को जीतना वो बड़ी बात है। चलो लीना जी, तुसी किसी के घर गए हो इदा बिन बुलाए मेहमान, पंजाबी च कहते हैं बिना सदे ही आ गए? तुसी गए हो कदे? किसी ने मना किया हो लीना जी क्यों आ गए तुसी?
मैं तो हमेशा ही जाती हूँ बिन बुलाए। आप अपना एड्रेस दे दो, मैं बिन बुलाए आपके घर भी पहुंच जाऊंगी। वो कोई उसकी कोई बात नहीं है। पर ये है कि ये जो पूरा मुहिम है हम लोगों का, उसमें इतनी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं कि सब संस्थाएं मिलजुल के ये काम कर रही है। तो बिन बुलाए की तो कोई बात ही नहीं है। जब हम इस देश के नागरिक हैं और अगला भी देश का नागरिक है, तो हम एक ही घर में रहते हैं, तो बिन बुलाए की तो बात ही नहीं हुई। ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ 26 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਆਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, गुजरात है, समुद्र के नेड़े बैठा है ना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है हाँ। कि बॉर्डर स्टेट में कुछ ज्यादा है और बॉर्डर स्टेट के अलावा वहां पर कम है। पंजाब के भी जो संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ के उतना ही भाग ले रहे हैं जो गुजरात के मतलब जो आंध्र प्रदेश के हो, तेलंगाना के हो या कर्नाटक के हो। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं, ये जो हमारे देश में जितने अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो है, वो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे और जो अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग भी इसके अंदर जुड़े हैं। तो इसमें ऐसा कोई बॉर्डर वाला हिसाब किताब नहीं है और हम लोग सबके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है पीटर जी, एक नॉन बीजेपी स्टेट्स वाला भी सवाल आएगा कि नॉन बीजेपी स्टेट्स में आपकी कैंपेन ज़्यादा मूव करेगी, ऐसा भी कुछ है पीटर जी? नॉन बीजेपी स्टेट है ये झारखंड। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ के जो लोकसभा की जो एमपीज हैं वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में मतलब बीजेपी के ही है। तो और देखिए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस विचारधारा तो कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है। उसमें हमको ये देखना है कि कैसे हम प्रेम का जो संदेश है, जो शायद आरएसएस नहीं करता है और उसके विपरीत में एक्शन कर रहा है, कैसे हम प्रेम का संदेश दे सके। और मैं आपसे अभी जो सुन रहा था, देखिए ये अभी जो स्टेज है, ये अभी हम लोग को मानवता को बचाने का स्टेज आ गया है कि कहाँ पे मतलब राष्ट्रवाद की जो अवधारणाएं दी जा रही हैं, उस राष्ट्रवाद में हम लोग को इतना संकीर्ण विचारधारा दे दी जा रही है कि उसमें हम बाउंड्रीज में बंध जा रहे हैं। वो बाउंड्रीज के पार हम लोग को, अगर हम लोग को इंसान की तरह जीना है, तो हम लोग को मतलब बाहर निकलना ही होगा। और ये जो बातें सिखाई जा रही हैं जिसमें मानव को अलग अलग किया जा रहा है, उसमें हम लोग को अपनी इंसानियत बचाने के लिए जीना है, बाहर निकलना है, लोगों के घर जाना है। तो मतलब नॉन बीजेपी स्टेट है लेकिन स्टिल काम करने की बहुत जरूरत है। चलो मैं इसके विपरीत सवाल कर लेता हूं, जहां पर बीजेपी स्टेट है वहां पर काम करने की भी जरूरत है? जरूर करने की जरूरत है ही। देखिए नफरत का जो माहौल है, नफरत की जो एक राजनीति है वो चल रही है। हेट पॉलिटिक्स में जिसमें डिवाइड कम्युनिटीज के बीच डिवाइड किया जा रहा है, उनके बारे में मिथक फैलाए जा रहे हैं। और खास तौर से क्रिश्चियन मुस्लिम्स के प्रति तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो आदिवासी कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी को इस तरह से एकदम अपने हिंदुत्व के फोल्ड में लेने की कोशिश हो रही है कि ये सारे जो है वो हिंदू है, सनातन है, सरना है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक पॉलिटिक्स चल रही है, नफरत की पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग को इन मिथकों को हम लोग को तोड़ना है। जी और जी हाँ शबनम जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मुहिम है जो हमने शुरू की है, मेरे घर आके तो देखो, इसका किसी राजनीतिक पार्टी का होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। जी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम हर तरह के भेदभाव मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग आपस में मिले जुले। तो
हम नफरत की जो पॉलिटिक्स है, जो हिंदू मुस्लिम की है, उसको हम जोड़ सकते हैं शायद बीजेपी से या संघ से, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इंटरकास्ट की भी। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप जो अपर कास्ट के लोग हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, वो दलितों के घर जाएं, क्योंकि दलितों के साथ भेदभाव जो है वो सैकड़ों सालों से हो रहा है। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप जहां रहते हैं वहां पे ये देखिए, कहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो अकेला रहता है, कहीं कोई महिला है, कोई कोविड में कोई महिला विडो हो गई या कोई वॉर विडो है, आप उसके घर जाइए, उसके साथ उसका दुख साझा कीजिए और उसके साथ मिलकर आजादी मनाइए। हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के दिल में दोबारा से करुणा जगाने की और जो नफरत है उसको हटा के प्यार मोहब्बत की बात करने जी। इसमें मुझे लगता है कि हम बीजेपी, कांग्रेस या और पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चलो, हमारी कोशिश ये है कि इंसानियत, जो हिंदुस्तान की एक जो पूरी संस्कृति थी मिली जुली, हम उसको दोबारा से उजागर कर सके, लोगों के दिलों में उसके लिए जगह बना सके जी। और एक दूसरे के मिलने जुलने से बहुत सारी चीजें हैं जो बदल सकती हैं। जब हम पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जब हम किसी के घर जाते हैं तब हम उसकी संस्कृति समझते हैं, तब हम उसके दुख समझते हैं और उसको बांट सके हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो बहुत जरूरी है। चलो, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ मेरे घर आके तो देखो मुहिम का असल मकसद की है। हाँ जी देव जी, अपनी बात भी रख सकते हैं आप और मेरे सवाल का एक जवाब भी दे दीजिए प्लीज़। ये कैंपेन कब से शुरू हुई है? पहली बार कब शुरू की थी आपने? देखिए 2017 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ साथियों ने मिलके शुरू किया था इसको, और मैं उसी एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता था कि हमने अहमदाबाद में ये किया था कि कुछ पाटीदार अपर कास्ट महिलाओं को अहमदाबाद में एक बड़ा गेटोज है, मुस्लिम गेटोज, जिसमें 3-4 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते, उसमें लेके गए और वो जो महिलाएं इंडिविजुअल दूसरी मुस्लिम महिलाओं से मिली, उनका पहला रिएक्शन ये था कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो हमने पूछा कि क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि हमें बचपन से ये बताया गया है कि आप अगर मुस्लिम एरिया में गई तो आपका रेप हो जाएगा, आप मार दी जाओगी, आप रोड से नहीं निकल सकती। ये सारे बायसेस जो है, जो उन्होंने कहा था कि हमने व्हाट्सएप पे ये पढ़ा था कि मुस्लिम के इतने बच्चे होते, इतनी बीबियां होती है, पर इनकी तो समस्या हमारी समस्या जितनी बड़ी है, इनके हाल जो है ऐसे ही है जितने हमारी महिलाओं के हाल है। तो ये पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया के जरिए और बाय वर्ड ऑफ माउथ जो फैलाया गया था, जो नफरत, वो उसी टाइम ब्रेक हो गई। और आज भी मैं ये उस महिलाओं को जानता हूं कि जो आज 5 सालों से अपनी दोस्ती उनकी बनी हुई है और उनके वो सारे मीथ टूट गए जो उनको समाज ने व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बताए थे। तो लोगों के मिलने से बहुत सारे मीथ टूटते हैं, मोहब्बत बढ़ती है और उनके आपसी रिश्ते इतने फैमिली के बन गए कि आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती है एज ए मीडिएटर। उनके घर कुछ प्रसंग होता है, वो उनको बुला लेते हैं, इनको ये बुला लेते हैं। जी चलो देव जी, आपने भी मीडिया का जिक्र किया, लीना जी ने पहले किया। लीना जी, मेरी गुजारिश है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ तो देखो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ शुरू हो जाएंगे ਮੈਨੂੰ लगता। तो अब तो मीडिया थोड़ा बदल रहा है। हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, मैं कह रही हूँ अब तो मीडिया बदल रहा है। हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं हर एक स्टेट के अंदर। इधर बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो कभी झांक के भी नहीं देखते थे ऐसे कैंपेनिंग को, उन लोगों ने इसको बढ़ चढ़कर अपने न्यूज़पेपर में डाला है फोटोओं के साथ। तो हमारी तो ये उपलब्धि है कि आज आप जैसे मीडिया हाउसेस भी हमारे को बुला रहे हैं। नहीं तो पहले तो सोचते थे कि अगर बुलाएंगे तो कहीं उसका लाइसेंस ही ना जब्त हो जाए। तो ये बदलाव तो आया है ना, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। तो ये जो मीडिया में बदलाव आया है वो हमारे देश की तरक्की के लिए आया है। नहीं लीना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? आपको ज्यादा अच्छा पता है मीडिया डरता है क्यों नहीं, क्यों डरता है?
आप ये देखिए कि मीडिया को आ रहा हूं, देव जी आ रहा हूं, एक मिनट। हर राजनीतिक पार्टियों में हाँ। तो जो इस वाली पार्टी ने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर दिया, ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, वो सब चेंज होगा, अब धीरे धीरे बदलाव की तरफ आएंगे। चलो हाँ देव जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप मीडिया का सवाल पूछ रहे थे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी जी। कुछ दिनों पहले हमने परलाकर प्रभाकरन है, उनकी एक बुक लॉन्च की थी अहमदाबाद में, और सारे मीडिया को सबको बुलाया था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसमें मीडिया के दोस्तों ने ये बताया कि हमें गुजरात सरकार के जरिए ये बताया गया है कि ये प्रोग्राम कवर नहीं करना है। हाँ। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, बताइए। चलो मैं पीटर जी, मैं शबनम जी आ रहा हूँ आपके पास, मैं आखिर में आऊँगा आपके पास। पीटर जी, मीडिया जो आपके राज्य की समस्या है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो उसको कवर करता है, उसको अहमियत देता है? अभी ऑल्टरनेटिव मीडिया देखिए, कुछ काफी यूट्यूबर्स जो हैं वो हमारे सामाजिक दुनिया से उठ रहे हैं। तो अब जैसे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, प्रभात खबर बहुत ही मेजर न्यूज़पेपर था और बहुत जनपक्षी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा भी एहसास हुआ कि प्रभात खबर के मैंने दैनिक भास्कर ये सब तो मेजॉरिटी में जो थे वो न्यूज़ नहीं कवर कर रहे थे, लेकिन प्रभात खबर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग साइडलाइन होने लगा। लेकिन अभी ऑल्टरनेटिव मीडिया का काफ़ी स्कोप बढ़ा है, यूथ आए हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी काफ़ी जो हैं वो यूट्यूबर्स हो गए हैं। तो ऑल्टरनेटिव स्पेस है मीडिया का, एंड यही इस डेमोक्रेटिक स्पेस को हम इस्तेमाल करेंगे। चलो एक आखिरी सवाल पीटर जी आपको करता हूँ, फिर उसके बाद शबनम जी से लास्ट कमेंट में लूँगा। पीटर जी, जिस तरीके से आप कैंपेन आगे बढ़ाएंगे, आपको लगता है कि उस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे? क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है किसान आंदोलन की, फार्मर एजिटेशन की। मुझे लगता है उससे बड़ी कैंपेन तो कोई नहीं हुई पिछले सालों में, जहाँ हुई है। पीटर जी देखिए, फार्मर्स कैंपेन जो है वो एक तरह से लोग जो है रोड पे आने का है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ये बहुत ही साइलेंट कैंपेन जैसा है, जो जहाँ पे एक दूसरे के घर जाना मिलना, तो ये अपने आप में मानवीय एक तरह से बिहेवियर, एक दूसरे से मिलना, और जो मिथक जो है उस मिथक और को सोशल मीडिया पे तोड़ना, अपने अनुभव को सोशल मीडिया पे बांटना, तो ये जो है एक तरह से साइलेंट रिवॉल्यूशन है। ये एक रोड पे झंडे लेके चलने वाला रिवॉल्यूशन नहीं है, वो अभियान नहीं है जिसमें हम माने रिश्तों को बदलने के लिए और जो दूरियां बदलने के लिए हम रोड पे झंडे लेके चलेंगे। यहाँ पे हम कम्युनिटीज को रीच करेंगे, और मुझे लगता है दिस इज मोर पर्सनल। ये एक बहुत ही थोड़ा सा अदृश्य कैंपेन की तरह होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक। शबनम जी, पीटर जी ने बड़ी वधिया गल की है, साइलेंस रेवोल्यूशन है ये साइलेंस रेवोल्यूशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? देखिए, कोई भी अभियान कितना भी अच्छा हो, आइडिया कितना भी अच्छा हो, वो एक दिन में क्रांति नहीं ला सकता। सामाजिक बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है। अब ये जो नफरतें दिलों में बैठी हैं हमारे लोगों के दिलो दिमाग में, ये एक दिन में नई नफरतें ऐसी बढ़ गई हैं। पिछले 30-40 साल से बहुत मेहनत की गई है लोगों का दिमागों पे कब्जा करने की, ताकि वो सोच ना सके, वो क्रिटिकली, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, उसको बहुत मेहनत से खत्म किया गया। तो हमारा जो कैंपेन है वो एक दिन जरूर रंग लाएगा, लेकिन 24 में लाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग जो कोशिशें कर रहे हैं मोहब्बत बढ़ाने की, उसमें एक हम भी, हमारा छोटा सा एक हिस्सा होगा। ये समझ लीजिए कि वो चिड़िया जो अपने चोंच में पानी लेके आग बुझाने जाती है, शायद वो अकेले नहीं बुझा सकती, लेकिन इतिहास में उसका नाम लिखा जाता है कि वो कायरों की तरह कोने में नहीं बैठी रही, उसने पूरी कोशिश की कि आग को बुझाए। तो इतना जरूर है कि हम डर के घरों में नहीं बैठे हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं नफरत के खिलाफ और लड़ते रहेंगे। इतिहास है याद रखूगा कि शबनम हाशमी दा ये आइडिया सी ते उन्होंने कैंपेन शुरू की थी सी। उम्मीद तो मैं करूंगी कि याद रखा जाए। शबनम हाशमी का नहीं, लेकिन बहुत सारे इसमें सैकड़ों ग्रुप जुड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, शुरुआत हम लोगों ने की,
लेकिन बहुत साथी जुड़े हैं इसमें। ਚਲੋ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਨਮ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुजारिश है कि जिन तक भी ये खबर पहुंची है इस अभियान के बारे में जिसका नाम है मेरे घर आके तो देखो, मतलब ये है कि आपने सोच लिया कि मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, बगैर मेरे घर आए एक बार आके तो देखिए कि मैं हूँ कैसा या मैं हूँ कैसी या मेरा परिवार कैसा है। तो इसमें इस कैंपेन में किसी की जरूरत नहीं है, आपको बस ये करना है कि आपके एरिया में, आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में जो भी ऐसा परिवार है जो आपसे अलग है, चाहे उसका धर्म अलग हो, जाति अलग हो, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हो, वो किसी अलग रीजन से हो, उसे अपने घर बुलाइए या उसके घर जाइए और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। क्योंकि ये जो माहौल बन गया है जिसमें हम लोगों ने एक दूसरे से मिलना ही बंद कर दिया है, और जब हम मिलते नहीं तो नफरतों पे और झूठी खबरों पे यकीन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप तो पंजाब का चैनल है और आप लोग जानते हैं कि एक दौर था जब हर एक सरदार के ऊपर शक करना शुरू हो गया था। उस दौर से निकलना कितना मुश्किल रहा था, मुझे अभी भी याद है 84 का वो वक्त दिल्ली में जब हम लोगों ने सड़कों पे क्या कुछ नहीं देखा। तो ये वो वक्त है जब सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, तकरीबन सारी कम्युनिटीज के साथ ऐसे हाल किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी तरफ से मोहब्बत का हाथ बढ़ाएं और दोबारा से जो हमारी विरासत है मोहब्बत की, साथ रहने की, मिली जुली संस्कृति की, उसको हम दोबारा इस देश में कायम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। शबनम जी, मैंने 2 लाइनें याद आ गई, कहता मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वाह 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 वाह। कोशिश है हर साज पे गाया जाए अब ये नगमा। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਪੀਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੀਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। कहते हैं फूल कितना भी खूबसूरत हो उसमें नहकत नहीं तो कुछ भी नहीं, लाख जोहर हो आदमी में अगर आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं, ते आदमियत बचानी आज की जरूरत है। बहुत धन्यवाद।